عوام کل 5 سال کے لیے اپنے نمائندے منتخب کریں گے۔ قومی اسمبلی کی 265 اور صوبائی کی 590 نشستوں پر انتخاب ہوگا۔ قومی 1 اور صوبائی اسمبلی کے 3 حلقوں میں انتخاب نہیں ہوگا۔ این اے 8، پی کے 22، پی کے 91 اور پی کے 266 میں الیکشن ملتوی کر دیے گئے۔ قومی اسمبلی کے لیے 5254، صوبائی کے لیے 12285 امیدوار۔ میڈیا پولنگ ختم ہونے کے 1 گھنٹے بعد رزلٹ نشر کرے گا۔ واضح طور پر بتانا ہوگا کہ نتائج غیر حتمی اور غیر سرکاری ہیں۔ آروز پولنگ سٹیشنوں کا مکمل غیر حتمی نتیجہ جاری کریں گے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ ریٹرننگ افسران و پولیس ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد کی پابند ہے۔ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی غیر قانونی تصور ہوگی۔ الیکشن کمیشن کے اعلامیہ کے مطابق مانیٹرنگ ٹیمیں فعال ہو گئی ہیں جو ضابطہ اخلاق کے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کریں گی۔ کل 8 فروری کو پولنگ کا عمل صبح 8 سے شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ حکمرانی کس کو دی جائے؟ فیصلہ 12 کروڑ 85 لاکھ ووٹرز کریں گے۔ کل ہونے والے عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی جانب سے ملک بھر میں 90,675 پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں۔ 16,766 پولنگ سٹیشن انتہائی حساس اور 29,985 حساس قرار۔ مردوں کے لیے 25,320، خواتین کے لیے 23,952 پولنگ سٹیشن قائم کیے گئے ہیں۔ ملک بھر میں مردوں اور خواتین کے لیے مشترکہ پولنگ سٹیشنز کی تعداد 41,403 ہے۔ پنجاب میں مجموعی طور پر 50,944 پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے۔ سندھ میں مجموعی طور پر 19,006 پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں۔ آٹھ فروری کو ملک بھر میں ہونے والے عام انتخابات کے لیے پریزائڈنگ افسران اور پولنگ عملے کو انتخابی سامان کی ترسیل۔ کل ہونے والے انتخابات کے لیے انتخابی سامان پریزائڈنگ افسران اور پولنگ عملے کے سپرد کیا جا رہا ہے۔ ڈی آر او اسلام آباد نے کہا ہے کہ اسلام آباد کے تینوں حلقوں میں پولنگ میٹیریل متعلقہ حلقے کو دیا جا رہا ہے۔ پریزائڈنگ افسران کو الیکشن کمیشن کے ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد کی ہدایات کی گئی ہیں۔ کراچی میں ضلع شرقی میں پولنگ سامان کی ترسیل ایکسپو سینٹر سے ہوگی۔ ایکسپو سینٹر کے باہر پولیس کی بھاری نفری موجود ہے۔ ملتان میں قومی کے 6 اور صوبائی اسمبلی کے 12 حلقوں کے پریزائڈنگ افسران کو سامان کی فراہمی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ پولنگ سامان فراہم کرنے کے لیے 3 سینٹرز بنائے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے فارم 45 کی تیاری کے لیے پریزائڈنگ افسران کو تحریری ہدایت نامہ جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے ہدایت نامے میں کہا کہ پریزائڈنگ افسران فارم 45 مکمل احتیاط سے تیار کریں تاکہ کسی غلطی کا احتمال نہ رہے۔ ہدایت نامے کے مطابق پریزائڈنگ افسران فارم 45 پر شناختی کارڈ والے دستخط کریں۔ پولنگ سٹیشنز پر پولنگ ایجنٹ سے فارم 45 پر مختص جگہ پر دستخط لیں۔ الیکشن کمیشن نے ہدایت کی ہے کہ پولنگ ایجنٹ کے دستخط سے انکار یا جانے پر فارم 45 میں مختصر وجہ تحریر کریں۔ دستخطوں کے بعد فارم 45 کی کاپی باہر چسپاں کریں اور پولنگ ایجنٹس کو دیں۔ پنجاب بھر کے قیدیوں نے اپنے پسندیدہ امیدواروں کے لیے حق رائے دہی استعمال کر لیا۔ آئی جی جیل خانہ جات میاں فاروق نذیر کے مطابق پنجاب کے 43 جیلوں میں قید 65,000 سے زائد قیدیوں میں سے 1,500 قیدیوں نے پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ الیکشن کمیشن نے قیدیوں کا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آئی جی جیل خانہ جات پنجاب کو خط لکھا تھا۔ میاں فاروق نذیر نے بتایا کہ پنجاب کی جیلوں میں قیدیوں کو ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے پوچھا گیا، جس پر 1,500 قیدیوں کے قوائف پورے ہوئے۔ سپرنٹینڈنٹ نے کیمروں کی مانیٹرنگ میں ووٹ کا عمل مکمل کروا کر پوسٹل بیلٹ پیپر بھجوا دیے۔
8 फरवरी को इलेक्शन के रोज मुल्क में कहीं भी इंटरनेट सर्विस बंद नहीं होगी। पीटीआई की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि हुकूमत पाकिस्तान इलेक्शन के रोज इंटरनेट बंद नहीं करेगी। इलेक्शन के रोज सार्फिन को इंटरनेट की मुकम्मल सहूलत मैसर होगी। हुकूमत की जानिब से इंटरनेट की बंदिश के हवाले से किसी किस्म की हिदायत नहीं मिली है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी उम्मीदवार सलमान अकरम राजा की फॉर्म 33 पर पार्टी जाहिर करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 33 पर सलमान अकरम राजा की पार्टी जाहिर करने की दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन की डेप्यूटी डायरेक्टर लॉ साइमा जंजुआ ने फैसला सुनाया। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में कहा है कि सलमान अकरम राजा को आजाद उम्मीदवार का निशान दिया गया है। वो जिस पार्टी से हैं उन्हें उसका निशान नहीं दिया जा सकता। 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात बनकर उभरेगी, जिसके बाद दूसरा नंबर पीपल्स पार्टी और उसके बाद तहरीक इंसाफ और दीगर जमातों का होगा। सरकारी तंजीम की जायजा रिपोर्ट में पुलिस, ज़राए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, मजदूर यूनियंस और मुख्तलिफ शोबों में पेशावर अफराद के इंटरव्यूज के जरिए जमा की गई मालूमात की बुनियाद पर यह तज्जिया पेश किया। उन्होंने वजाहत की है कि जायजा पुलिस स्टेशन और यूनियन कौंसिल की सतह पर किया गया गलत अंदाजों के इम्कान को दूर करने के लिए ये सर्वे साइंसी अंदाज में किया गया है। अगरचे अब तक किए गए सर्वे में नून लीग की मकबूलियत की शरह के हवाले से एक पुरउम्मीद अंदाजा लगाया गया है। पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के सिलसिले में तुर्कम बॉर्डर बंद रहेगा। जराये के मुताबिक तुर्कम बॉर्डर आज रात से कल रात 12 बजे तक बंद रहेगा। तुर्कम बॉर्डर जराये ने बताया कि आम इंतखाबात के सिलसिले में तुर्कम बॉर्डर 24 घंटे के लिए बंद रहेगा। रूस पाकिस्तान फ्रेंडशिप ग्रुप के सरबराह सेनेटर विलादी मीर शेजोफ ने निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जलानी से मुलाकात की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सेनेटर शेजोफ कल होने वाले आम इंतखाबात के लिए बैनुल अक़वामी मुबस्सिर के तौर पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। मुमताज़ ज़हरा बलोच के मुताबिक निगरान वज़ीर ख़ारजा ने आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इजहार किया। मुलाकात के दौरान निगरान वज़ीर ख़ारजा ने पाक रूस दो तरफ़ा ताउन को मजबूत बनाने के पाकिस्तान के अज़्म का भी इयादा किया है। बैनुल अक़वामी मालियाती इदारा IMF गर्दशी कर्जे में कमी और बिजली के निर्खों को माकूल और इस्तदलाबी बनाने की मंसूबों की आइंदा जुमेरात या जुमा तक मंजूरी देगा। दोनों की जानिब से मुस्बत जवाब आ जाएगा। ताहम IMF के वाशिंगटन में आला अफसरान ने पावर टैरिफ के हवाले से निगरान हुकूमत की हिकमत अमली पर सवालात उठाए हैं। गर्दशी कर्जे में कमी के मंसूबे पर IMF के फैसला साजों ने कोई ज्यादा तवज्जो नहीं दी। आदाद व शुमार पर मबनी डेटा मिलने के बाद IMF से जुम्मा तक मंजूरी मुतवक्के है। IMF ने पावर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी से भी पावर टैरिफ का डेटा मांगा है। जराये के मुताबिक मज़कूरा दो मंसूबों पर बातचीत में IMF की जानिब से कोई मनफी रुझान रखने में नहीं आया। डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी, रुपया मजीद तगड़ा हो गया। स्टॉक एक्सचेंज में भी कारोबार का मस्बत रुझान रहा। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज इंटरबैंक में डॉलर मजीद 17 पैसे सस्ता हो गया, जिसके बाद डॉलर की कीमत 279 रुपये 25 पैसे हो गई। गुज़िश्ता रोज कारोबारी दिन के अख्ताम पर डॉलर का रेट 279 रुपये 42 पैसे पर बंद हुआ था। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में कारोबार का मस्बत आगाज हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में 277 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद इंडेक्स 64,078 पॉइंट्स पर पहुंच गया।
امریکی ایوان نمائندگان نے اسرائیل کی امداد کا پیکج مسترد کر دیا۔ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کی جانب سے اسرائیل کے لیے امدادی پیکج کی مخالفت کی گئی۔ امریکی ایوان نمائندگان نے اسرائیل کی امداد کے پیکج کی مخالفت کرتے ہوئے اسے مسترد کر دیا اور ایوان میں اسرائیل کی امداد کا بل 2/3 اکثریت کی درکار حد حاصل نہ کر سکا۔ واضح رہے امریکی ایوان نمائندگان میں اسرائیل کی $17.6 ارب امداد کا پیکج پیش کیا گیا تھا۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ میں بدترین جارحیت کا سلسلہ جاری۔ صہیونی فوج کی بمباری سے 24 گھنٹوں میں مزید 107 فلسطینی شہید ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل نے بربریت کی تمام حدیں پار کر دی۔ اسرائیلی فوج نے دیر البلح میں ایک گودام اور رفح میں ایک گھر کو نشانہ بنایا۔ دونوں رہائش گاہوں میں فلسطینی بے گھر ہو گئے، متعدد شہید اور زخمی ہوئے۔ صہیونی فوج نے جبالیہ میں گھر پر بم برسا کر مزید 20 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ خان یونس میں الحناوی اسکول میں موجودہ بے گھر فلسطینیوں پر بھی راکٹ داغ دیے گئے، جہاں بچوں اور خواتین سمیت 14 فلسطینی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ رفح میں بھی اسرائیلی حملوں میں 6 فلسطینی شہید ہو گئے۔ سعودی عرب نے جنوبی کوریا سے فضائی دفاعی نظام کی خریداری کا معاہدہ کر لیا۔ معاہدے کے تحت سعودی عرب جنوبی کوریا سے $3 ارب مالیت کی 10 بیٹریاں خریدے گا۔ عرب میڈیا کے مطابق سعودی عرب کے شہر ریاض میں جاری ورلڈ ڈیفنس شو کی سائیڈ لائن پر سعودی وزیر دفاع اور ان کی جنوبی کورین ہم منصب کی موجودگی میں دونوں ممالک کے درمیان دفاعی معاہدے ڈیفنس ایکوزیشن پروگرام ایگریمنٹ کی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ یادداشت نامے پر دستخط کی تقریب کے موقع پر جنوبی کورین وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ ہماری دفاعی فرم LI Next One سعودی عرب کو زمین سے فضا میں مار کرنے والا مڈ رینج ایئر ڈیفنس سسٹم فراہم کرے گی۔ لاہور ہائی کورٹ نے ڈرائیونگ لائسنس فیسوں میں اضافے کے خلاف درخواست پر فریقین سے جواب طلب کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس ساجد محمود سیٹھی نے سینئر قانون دان غلام عباس ہلال کی ڈرائیونگ لائسنس کی فیسوں میں اضافے کے خلاف درخواست پر سماعت کی۔ درخواست میں نگران پنجاب حکومت، IG پنجاب سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا۔ عدالت نے چیف سیکرٹری اور IG پنجاب سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے تحریری جواب طلب کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے سرکاری وکیل کو آئندہ سماعت تک مکمل تفصیلی جواب جمع کروانے کا بھی حکم دے دیا۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی ون ڈے رینکنگ میں پاکستانی ٹیم کے سابق کپتان بابر اعظم کی پہلی پوزیشن برقرار۔ ICC نے ٹیسٹ ون ڈے اور T20 پلیئرز کی رینکنگ جاری کر دی۔ ون ڈے پلیئرز رینکنگ میں پاکستان کے سابق کپتان بابر اعظم کی پہلی پوزیشن برقرار ہے۔ ون ڈے رینکنگ میں بھارت کے شبھمن گل کا دوسرا اور وراٹ کوہلی کا تیسرا نمبر ہے، جبکہ نیوزی لینڈ کے ڈیرل مچل ایک درجے ترقی کے بعد 5ویں نمبر پر آ گئے ہیں۔ ون ڈے باؤلرز میں جنوبی افریقہ کے کیشو مہاراج کی پہلی پوزیشن برقرار ہے۔ اور بالی ووڈ کی مقبول جوڑی ایشا دیول اور بھرت تختانی نے شادی کے 12 سال بعد ایک دوسرے سے راہیں جدا کر لی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ایشا دیول اور بھرت تختانی نے مشترکہ بیان جاری کرتے ہوئے علیحدگی کی تصدیق کی۔ سابقہ جوڑی کا کہنا تھا کہ ہمارے درمیان علیحدگی باہمی رضامندی سے ہوئی۔ زندگی کی اس تبدیلی میں بچے ہم دونوں کی ترجیح رہیں گے، جو کہ ہم دونوں کے لیے بے حد اہمیت کے حامل ہے۔ ہم اپنی پرائیویسی کا احترام کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں کامران اکرم اور میں ہوں نیہا پروین۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔
वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि आवाम कल 5 साल के लिए अपने नुमाइंदे मुंतखब करेगी। कौमी असम्बली की 265 और सूबाई की 590 नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। कौमी 1 और सूबाई असम्बली के 3 हलकों में इंतखाब नहीं होगा। NA 8, PK 22, PK 91 और PP 266 में इलेक्शन मुलतवी हो गए हैं। कौमी असम्बली के लिए 5254 सूबाई उम्मीदवार, 1,12,028 और 53 उम्मीदवार। मीडिया पोलिंग खत्म होने के 1 घंटे बाद रिजल्ट नशर कर सकेगा। वाज़ेह तौर पर बताना होगा कि नताइज गैर हतमी और गैर सरकारी हैं। आरोज पोलिंग स्टेशन का मुकम्मल गैर हतमी नतीजा जारी करेंगे। विजिटिंग एंड रिटर्निंग अफसरान और पुलिस ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद की पाबंद है। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी गैर कानूनी तस्वुर होगी। इलेक्शन कमीशन के एलामिया के मुताबिक मॉनिटरिंग टीमें फाल हो गई हैं, जो कि ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। कल 8 फरवरी को पोलिंग का अमल सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। पोलिंग के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। वोट कास्ट करने के लिए वोटर के पास असली शनाख्ती कार्ड होना लाजमी है। जायदुल शनाख्ती कार्ड पर भी वोट डाला जा सकेगा। वोटर्स पोलिंग स्टेशन की मालूमात के लिए अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर 8300 पर SMS भेज कर भी हासिल कर सकते हैं। हुक्मरानी किसको दी जाए, फैसला 12 करोड़ 85 लाख वोटर्स करेंगे। कल होने वाले आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुल्क भर में 90,675 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। 16,766 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास और 29,985 हसास करार दिए गए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मर्दों के लिए 25,320, खातीन के लिए 23,952 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। मुल्क भर में मर्दों और खातीन के लिए मुश्तरका पोलिंग स्टेशन की तादाद 41,403 है। पंजाब में मजमूई तौर पर 50,944 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। पंजाब में मर्दों के लिए 14,556, खातीन के लिए 14,036 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जबकि सूबे में मर्दों और खातीन के लिए मुश्तरका पोलिंग स्टेशन की तादाद 22,352 है। सिंध में मजमूई तौर पर 19,006 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। सिंध में मर्दों के लिए 4,443, खातीन के लिए 4,313 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। सिंध में मर्दों और खातीन के लिए मुश्तरका पोलिंग स्टेशन की तादाद 10,250 है। खैबर पख्तूनख्वा में मजमूई तौर पर 15,697 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। खैबर पख्तूनख्वा में मर्दों के लिए 4,810, जबकि खातीन के लिए 4,286 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मर्दों और खातीन के लिए 6,610 मुश्तरका पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। बलोचिस्तान में मजमूई तौर पर 5,028 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। बलोचिस्तान में मर्दों के लिए 1,511, खातीन के लिए 1,317 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जबकि मर्दों और खातीन के लिए मुश्तरका पोलिंग स्टेशन की तादाद 2,200 है। जबकि दूसरी जानिब आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 की तैयारी के लिए प्रिजाइडिंग अफसरान को तहरीरी हिदायतनामा जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने हिदायतनामे में कहा कि प्रिजाइडिंग अफसरान फॉर्म 45 मुकम्मल एहतियात से तैयार करें ताकि किसी गलती का एहतमाल न रहे। हिदायतनामे के मुताबिक प्रिजाइडिंग अफसरान फॉर्म 45 पर शनाख्ती कार्ड वाले दस्तखत करें। पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग एजेंट से फॉर्म 45 पर मुख्तलिफ जगह पर दस्तखत लिए जाएं। इलेक्शन कमीशन ने हिदायत की है कि पोलिंग एजेंट के दस्तखत से इनकार या जाने पर फॉर्म 45 में मुख्तसर वजह तहरीर करें। दस्तखतों के बाद फॉर्म 45 की कॉपी बाहर चस्पा करें और पोलिंग एजेंट्स को दें। चस्पा किए जाने के बाद फॉर्म 45 में तब्दीली के जिम्मेदार प्रिजाइडिंग अफसरान होंगे। फॉर्म 45 की तस्वीर रिटर्निंग अफसरान को अरसाल करें। इंटरनेट ना हुआ तो जाती हैसियत में RO ऑफिस जमा करवाएं। और नाजरीन, 8 फरवरी को मुल्क भर में होने वाले आम इंतखाबात के लिए प्रिजाइडिंग अफसरान और पोलिंग अमले को इंतखाबी सामान की तरसील जारी है। कल होने वाले इंतखाबात के लिए इंतखाबी सामान प्रिजाइडिंग अफसरान और पोलिंग अमले के सुपुर्द किया जा रहा है। DRO इस्लामाबाद का कहना है कि इस्लामाबाद के तीनों हलकों में पोलिंग मटीरियल मुताल्लिका हल्के को दिया जा रहा है। प्रिजाइडिंग अफसरान को इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद की हिदायत की गई है। कराची में जिला शर्की में पोलिंग सामान की तरसील एक्सपो सेंटर से होगी। एक्सपो सेंटर के बाहर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। मुल्तान में कौमी के 6 और सूबाई असम्बली के 12 हलकों के प्रिजाइडिंग अफसरान को सामान की फराहमी का आगाज कर दिया गया है। पोलिंग सामान फराहम करने के लिए 3 सेंटर्स बनाए गए हैं। NA 148,
NA 149, NA 150 और NA 151 के प्रिजाइडिंग अफसरान को सामान मुल्तान पब्लिक स्कूल से फराहम किया जा रहा है, जबकि NA 152 के लिए शुजाआबाद और NA 153 के लिए जलालपुर पीरवाला में सेंटर कायम किया गया है। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर का कहना है कि पोलिंग सामान सख्त सिक्योरिटी में प्रिजाइडिंग अफसरान को फराहम किया गया। पोलिंग सामान पुलिस की सिक्योरिटी में पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाया जा रहा है। पोलिंग सामान की तरसील शाम 6 बजे तक मुकम्मल कर ली जाएगी। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि 8 फरवरी को इलेक्शन के रोज मुल्क में कहीं भी इंटरनेट सर्विस बंद नहीं होगी। पीटीआई की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि हुकूमत पाकिस्तान इलेक्शन के रोज इंटरनेट बंद नहीं करेगा और इलेक्शन के रोज सार्फिन को इंटरनेट की मुकम्मल सहूलत मैसर होगी। हुकूमत की जानिब से इंटरनेट की बंदिश के हवाले से किसी किस्म की हिदायत नहीं मिली है। ख्याल रहे कि सोशल मीडिया पर इस हवाले से बहुत ज्यादा कयास आराइयां की जा रही थी कि 8 फरवरी को इलेक्शन के रोज इंटरनेट बंद रहेगा, जिसके बाद सिंध हाई कोर्ट ने भी अहकाम जारी किए थे कि इलेक्शन के रोज मुल्क भर में इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस बिला तातुल फराहम की जाए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी ने मुल्क में बार बार इंटरनेट सर्विस की बंदिश और तातुल पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा था कि हमारा इंटरनेट नहीं चलता तो कहीं और क्या चलता होगा। लगता है कि इलेक्शन के बाद ठीक हो जाएगा। दूसरी जानिब पंजाब भर के कैदियों ने अपने पसंदीदा उम्मीदवारों के लिए हक राय दही इस्तेमाल कर लिया है। आईजी जेल खानाजात मियां फारूक नजीर के मुताबिक पंजाब की 43 जेलों में कैद 65,000 से ज्यादा कैदियों में से 1,500 कैदियों ने पोस्टल बैलेट के जरिए अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। इलेक्शन कमीशन ने कैदियों का वोट कास्ट करने के लिए आईजी जेल खानाजात पंजाब को खत लिखा था। मियां फारूक नजीर ने बताया कि पंजाब की जेलों में कैदियों को वोट कास्ट करने के लिए पूछा गया, जिस पर 1,500 कैदियों के कवायद पूरे हुए। सुपरिंटेंडेंट ने कैमरों की मॉनिटरिंग में वोट का अमल मुकम्मल करवाकर पोस्टल बैलेट पेपर भिजवा दिए। कैदियों ने अपना पोस्टल वोट कास्ट किया। इलेक्शन कमीशन इसका रिजल्ट जारी करेगा। आईजी जेल खानाजात मियां फारूक नजीर ने मजीद बताया कि सोशल मीडिया पर बेबुनियाद खबरें चलाकर शफाफ अमल को मतनाज़े बनाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी उम्मीदवार सलमान अकरम राजा की फॉर्म 33 पर पार्टी वाबस्तगी दर्ज करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 33 पर सलमान अकरम राजा की पार्टी जाहिर करने की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन की डिप्टी डायरेक्टर लो साइमा जंजुआ ने फैसला सुनाया। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में कहा कि सलमान अकरम राजा को आजाद उम्मीदवार का निशान दिया गया है। वो जिस पार्टी से हैं उन्हें उसका निशान नहीं दिया जा सकता। फैसले के मतन के मुताबिक आजाद उम्मीदवार इलेक्शन जीतने के बाद भी असेंबली में पीटीआई का मुंतखब रुकन नहीं बन सकता। ख्याल रहे कि NA 128 लाहौर पर पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले आजाद उम्मीदवार सलमान अकरम राजा ने इलेक्शन कमीशन से फॉर्म 33 में पार्टी वाबस्तगी दर्ज करने की इस्तदा की थी। सलमान अकरम राजा का मौक़िफ़ था कि तहरीक इंसाफ को अब तक कालादम करार नहीं दिया गया और इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड जमातों में भी शामिल है। सरकारी तंजीम की जायजा रिपोर्ट से मालूम हुआ है कि 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात बनकर उभरेगी, जिसके बाद दूसरा नंबर पीपल्स पार्टी और उसके बाद तहरीक इंसाफ और दीगर जमातों का होगा। एक अहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि सरकारी तंजीम ने पुलिस, ज़राए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, मजदूर यूनियंस और मुख्तलिफ शोबों में पेशावर अफराद के इंटरव्यूज के जरिए जमा की गई मालूमात की बुनियाद पर यह तज्जिया पेश किया है। उन्होंने वजाहत की कि यह जायजा पुलिस स्टेशन और यूनियन काउंसिल की सतह पर किया गया है। गलत अंदाजों के इम्कान को दूर करने के लिए यह सर्वे साइंसी अंदाज में किया गया। अगरचे अब तक किए गए सर्वे में नून लीग की मकबूलियत की शरह के हवाले से एक पुरुमीद अंदाजा लगाया गया है, क्योंकि नवाज शरीफ की वापसी के बाद से पार्टी की मकबूलियत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। लेकिन अब तक किसी ने यह जायजा पेश नहीं किया कि पार्टी कितनी नशिस्तें जीत सकती है। बैनुल-अक़वामी मीडिया ने भी नवाज शरीफ को मुस्तकबिल के वजीर आजम के तौर पर पेश किया है, लेकिन क्या वो सादा अक्सरियत हासिल कर पाएंगे या नहीं, इसका जवाब नहीं है। लेकिन इस सरकारी जायजे के मुताबिक नून लीग को 115 में से 132 के दरमियान कौमी असम्बली की नशिस्तें मिलने का इम्कान है। खातीन और अकलियतों की मखसूस नशिस्तों को शामिल करने का मतलब ये होगा कि पार्टी के पास सादा अक्सरियत के साथ तन्हा हुकूमत बनाने का मौका होगा। जहां तक सूबाई असम्बली की नशिस्तों का ताल्लुक है, जायजे के मुताबिक पंजाब असम्बली में उन्हें 297 में से 190 के करीब नशिस्तें मिल सकती हैं, यानी नून लीग को सूबाई असम्बली में मुकम्मल अक्सरियत मिल सकती है। जराए के मुताबिक नून लीग चंद अजला के अलावा पंजाब में क्लीन स्वीप कर सकती है।
और मुल्क के 4 इंतखाबी हलकों में उम्मीदवारों की अमवात के बायस पोलिंग मुलतवी कर दी गई। पीके 91 को हार 2 से उम्मीदवार असमतुल्ला खटक के इंतकाल के सबब पोलिंग मुलतवी की गई। इसके अलावा NA 8 बाजोड़, पीके 22 बाजोड़ 4 में उम्मीदवार रेहान ज़ेब की मौत पर कल पोलिंग नहीं होगी। PP 266 रहीम यार खान 12 में उम्मीदवार इसरार हुसैन के इंतकाल पर कल इलेक्शन नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुतालिका हलकों में इलेक्शन आम इंतखाबात के बाद होंगे और 8 फरवरी को इलेक्शन के बाद इन हलकों के शेड्यूल का ऐलान होगा। और नाजरीन, पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के सिलसिले में तुर्कम बॉर्डर भी बंद रहेगा। जराये के मुताबिक तुर्कम बॉर्डर आज रात से कल रात 12 बजे तक बंद रहेगा। तुर्कम बॉर्डर जराये ने बताया कि आम इंतखाबात के सिलसिले में तुर्कम बॉर्डर 24 घंटे के लिए बंद रहेगा। रूस पाकिस्तान फ्रेंडशिप ग्रुप के सरबराह सेनेटर व्लादिमीर शेजोफ ने निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जलानी से मुलाकात की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सेनेटर शेजोफ कल होने वाले आम इंतखाबात के लिए बैनुल अक़वामी मुबस्सर के तौर पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। मुमताज ज़ारा बलोच के मुताबिक निगरान वजीर खारजा ने आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए पाकिस्तान के अज़म का इजहार किया। मुलाकात के दौरान निगरान वजीर खारजा ने पाक रूस दो तरफा ताउन को मजबूत बनाने के पाकिस्तान के अज़म का भी इयादा किया है। और अब आपको बताएं कि हुकूमती आला और जिम्मेदारान को तवक्को है कि बैनुल अक़वामी मालियाती इदारा IMF गर्दिशी कर्जे में कमी और बिजली के निर्खों को माकूल और इस्तदलाबी बनाने के मंसूबों की आइंदा जुमेरात या जुमा तक मंजूरी दे देगा। दोनों की जानिब से मुस्बत जवाब आ जाएगा। ताहम IMF के वाशिंगटन में आला अफसरान ने पावर टैरिफ के हवाले से निगरान हुकूमत की हिकमत अमली पर सवालात उठाए हैं। गर्दिशी कर्जे में कमी के मंसूबे पर IMF के फैसला साजों ने कोई ज्यादा तवज्जो नहीं दी। आदाद शुमार पर मबनी डेटा मिलने के बाद IMF से जुमा तक मंजूरी मुतवक्के है। IMF ने पावर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी से भी पावर टैरिफ का डेटा मांगा है। जराये के मुताबिक मज़कूरा दो मंसूबों पर बातचीत में IMF की जानिब से कोई मनफी रुझान रखने में नहीं आया। निगरान हुकूमत में मुतालिका जिम्मेदारान ने गुज़श्ता रोज IMF के तलब करदा तमाम सवालात के जवाबात दे दिए और फैसलों के लिए कुछ मजीद आदाद शुमार भी फराहम कर दिए। बिजली निर्खों में मकबूलियत के मंसूबे के तहत सार्फिन के लिए 222 अरब रुपए की सब्सिडी वापस लेकर सनती सार्फिन के लिए पावर टैरिफ में 8.85 सेंट से 11.75 सेंट फी यूनिट तक कमी कर दी जाएगी। गैर महफूज बिजली सार्फिन जो माहाना 400 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए फिक्स्ड चार्जेस में इजाफा कर दिया जाएगा। हुकाम का मौकफ है कि बरामदात में इजाफे के बगैर पाकिस्तान की इक्तसादियात फल फूल नहीं सकती, लिहाजा बिजली के टैरिफ को माकूल बनाना लाजिम है। बिजली के 14 सेंट फी यूनिट नर्ख के साथ बैनुल अक़वामी मंडियों में भारत, बांग्लादेश और वियतनाम की मसनूआत का मुकाबला किया जा सकता है, जबकि घरेलू सार्फिन पर जू तलाफी वापस लिए जाने के बाद फिक्स्ड चार्जेस 50 से 450 रुपए माहाना कर दिए जाएंगे। डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी, रुपया मजीद तगड़ा हो गया। स्टॉक एक्सचेंज में भी कारोबार का मस्बत रुझान रहा। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज इंटरबैंक में डॉलर मजीद 17 पैसे सस्ता हो गया, जिसके बाद डॉलर की कीमत 279 रुपए 25 पैसे हो गई। गुज़िश्ता रोज कारोबारी दिन के अख्ताम पर डॉलर का रेट 279 रुपए 42 पैसे पर बंद हुआ था। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में कारोबार का मस्बत आगाज हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में 277 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद इंडेक्स 64,078 पॉइंट्स पर पहुंच गया। और हाफिजाबाद में पुरानी दुश्मनी पर मुखालिफिन की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, एक शदीद जख्मी हो गया। वाकया अलीपुर रोड नज़दीक डेरा मकीन छाप पेश आया, जहां जाँ बहक शख्स की शनाख्त फैजुल हसन के नाम से हुई। शदीद जख्मी होने वाले 50 साल जमान को रेस्क्यू अमले ने ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया है। और अब बात करें इसराइली बर्बरियत की, तो आपको बताएं कि इसराइली फौज की जानिब से गजा में बदतरीन जारियत का सिलसिला जारी। सेहूनी फौज की बमबारी से 24 घंटों में मजीद 107 फलस्तीनी शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने बर्बरियत की तमाम हदें पार कर दी। इसराइली फौज ने देरुल बला में एक गोदाम और रफा में एक घर को निशाना बनाया। दोनों रिहाइशगाहों में फलस्तीनी बेघर हो गए। मुतादिद शहीद और जख्मी हुए। सेहूनी फौज ने सवालिया में घर पर बम बरसाकर मजीद 20 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। खान यूनिस में अल हनावी स्कूल में मौजूद बेघर फलस्तीनियों पर भी रॉकेट दाग दिए गए।
जहां बच्चों और खवातीन समेत 14 फलस्तीनी जान से हाथ धो बैठे। रफा में भी इसराइली हमलों में 6 फलस्तीनी शहीद हो गए। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने इसराइल की इमदाद का पैकेज मुस्तरद कर दिया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स की जानिब से इसराइल के लिए इमदादी पैकेज की मुखालिफत की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने इसराइल की इमदाद के पैकेज की मुखालिफत करते हुए उसे मुस्तरद कर दिया और ऐवान में इसराइल की इमदाद का बिल 2/3 अक्सरियत की दरकार हद हासिल न कर सका। वाज़ेह रहे, अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में इसराइल की 17.6 अरब डॉलर इमदाद का पैकेज पेश किया गया था। जबकि दूसरी जानिब हमास ने गजा जंग बंदी और जरगवानियों की रिहाई के लिए कतर और मिस्र की मुजवजा तजावीज़ का जवाब दे दिया। कतरी वज़ीर आज़म और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने मुआहदे के फ्रेमवर्क से मुतालिक हमास का जवाब मिलने की तस्दीक कर दी है। दोहा में कतरी वज़ीर आज़म के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्लिंकन का कहना था कि हमास के जवाब का जायजा ले रहे हैं। अभी बहुत काम बाकी है, लेकिन यकीन है कि मुआहदा मुमकिन है। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने हमास के जवाब को उम्मीद फजा करार देते हुए कहा कि इस नाजुक वक्त में मुआहदे के फ्रेमवर्क की तफसीलात नहीं बता सकते। और नाजरीन, सऊदी अरब ने जनूबी कोरिया से फिजाई दिफाई निज़ाम की खरीदारी का मुआहदा कर लिया है। मुआहदे के तहत सऊदी अरब जनूबी कोरिया से 3 अरब डॉलर मालियत की 10 बैटरियां खरीदेगा। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब के शहर रियाज में जारी वर्ल्ड डिफेंस शो की साइड लाइन पर सऊदी वजीर दिफा और उनकी जनूबी कोरियन हम मनसब की मौजूदगी में दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई मुआहदे डिफेंस एक्विजिशन प्रोग्राम एग्रीमेंट की यादाश्त पर दस्तखत किए गए। यादाश्त नामे पर दस्तखत के तकरीब के मौके पर जनूबी कोरियन वजीर दिफा का कहना था कि हमारी दिफाई फर्म एलआई नेक्स्ट वन सऊदी अरब को जमीन से फिजा में मार करने वाला मिड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम फराहम करेगी। इस मौके पर डापा के डायरेक्टर इवन डोंग हुआन का कहना था कि उम्मीद है कि यह यादाश्त नामा दोनों ममालिक के दरमियान में मुस्तकबिल में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के हवाले से कलीदी किरदार अदा करेगा और दिफा के शोबे में ताउन को मजीद बढ़ाने में मददगार साबित होगा। वाज़ेह रहे कि जनूबी कोरिया 2027 तक दुनिया का चौथा बड़ा दिफाई एक्सपोर्टर बनने के लिए कोशा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च सेंटर के मुताबिक 2000 में 31 पोजीशन पर मौजूद जनूबी कोरिया 2022 में 17 बिलियन डॉलर्स की दिफाई दरामदात और इसी साल 7.25 बिलियन डॉलर्स का इजाफे के साथ दिफाई एक्सपोर्टर्स की दर्जा बंदी में 9वीं पोजीशन पर पहुंच चुका है। यहां वक्त हुआ है एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताएं कि 76% पाकिस्तानी इलेक्शन के नताइज को तस्लीम करेंगे, जबकि 17% ने कोई राय नहीं दी। IPSOS ने इलेक्शन से मुतालिक नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के अवाम जमहूरियत के तसलसल और इलेक्शन के इनेकात के हवाले से पुरअज़म, पुरजोश और इंतखाबात की शफाफियत के हवाले से पुरउम्मीद हैं। सर्वे के मुताबिक दही इलाकों के 70%, जबकि शहरी इलाकों के 74% लोग इंतखाबात 2024 के नताइज को तस्लीम करेंगे। सर्वे के नताइज के मुताबिक दही इलाकों में इंतखाबात 2024 की शफाफियत और उनके नताइज को तस्लीम करने के हवाले से बेहतर तनासुब सामने आया है। खैबर पख्तूनख्वा में सर्वे के मुताबिक 79, पंजाब में 78, बलोचिस्तान में 73 और सिंध में 74, जबकि इस्लामाबाद में 53% लोग इलेक्शन 2024 के नताइज को तस्लीम करेंगे। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल इस्लामाबाद की कार्रवाई। डायरेक्टरेट इस्लामाबाद जोन की हिदायत पर इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। कार्रवाइयों में इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोह को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान में खुरम शहजाद, ताहिर अनवर, रफाक अहमद और शहबाज अहमद शामिल हैं। मुलजिमान जाली वीजों पर शहरियों को यूरोप भिजवाने में मुलविस थे। तर्जुमान FIA के मुताबिक बैरून मुल्क सफर की गर्ज से जाने वाले शहरी का वीजा जाली साबित होने पर मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। मुलजिम खुरम शहजाद की निशानदही पर दीगर मुलजिमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आम इंतखाबात के दौरान मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी की सूरत हाल की निगरानी के लिए वजारत दाखिला के जेर तमाम कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। कंट्रोल रूम हम्मा वक्त ऑपरेशनल रहेगा और सिक्योरिटी सूरत हाल की निगरानी की जा रही है। कंट्रोल रूम में तमाम सूबों के महकमा दाखिला, पुलिस और इलेक्शन कमीशन समेत तमाम मुतल्लिका इदारों के नुमाइंदगान शामिल हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों और दीगर मुतल्लिका इदारों के माबैन मालूमात के तबादले को यकीनी बनाया जा रहा है, ताकि किसी शिकायत या हादसे की सूरत में बर वक्त रद्द अमल को यकीनी बनाया जा सके।
और नाजरीन, गैस बिलों में इजाफे के खिलाफ सार्फिन सरापा एहतजाज हैं। शहरी हाथों में बिल उठाए सुई गैस दफ्तर हरबंसपुरा घुस गए। एहतजाजी मुजाहरीन की जानिब से महकमा के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मुजाहरीन का कहना था कि 500 से 1000 रुपए आने वाला गैस का बिल 50,000 से 1 लाख रुपए तक मौसूल हो रहा है, जो कि गरीब आदमी की पहुंच से दूर है। जबकि दूसरी जानिब इंचार्ज हरबंसपुरा असद अब्बास का कहना है कि गैस के बिल गवर्नमेंट की जानिब से बढ़ाए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे रिपोर्टर बासित अली की इस रिपोर्ट में। सुई नॉर्दर्न गैस ऑफिस हरबंसपुरा में गैस बिलों के खिलाफ दूसरे रोज भी एहतजाज जारी रहा। महकमा सुई गैस के बढ़ते हुए गैस बिलों से सार्फिन सरापा एहतजाज हैं। इसी हवाले से सुई नॉर्दर्न गैस सब ऑफिस हरबंसपुरा में दर्जनों अफराद की जानिब से एहतजाज किया गया, जिसमें सुई गैस इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। दर्जनों अफराद मर्दो खवातीन हाथों में बिल लिए दफ्तर में घुस गए। एहतजाज करते हुए मुजाहरीन का कहना था कि 500 से 1000 रुपए आने वाला गैस का बिल 50,000 से 1 लाख रुपए तक मौसूल हो रहा है, जो कि गरीब आदमी की पहुंच से दूर है। जबकि दूसरी जानिब इंतजामिया का कहना है कि गैस के बिल गवर्नमेंट की जानिब से बढ़ाए गए हैं। इसमें महकमा का कोई अमल दखल ना है। ओगरा की जानिब से बढ़ाए गए गैस के रेट्स पर महकमा की जानिब से किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं की जा सकती, लिहाजा कंपनी की जानिब से बिलों की इकसात का अमल जारी है। सीसीपी लाहौर बिलाल सदीक कुमियाना की हिदायत पर लाहौर पुलिस का अहम शाहराह पर फ्लैग मार्च एसएसपी ऑपरेशन सैयद अली रजा की क़यादत में पुलिस के तमाम विंग्स ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के हमरा फ्लैग मार्च में हिस्सा लिया। फ्लैग मार्च इस्तांबुल चौक से शुरू होकर हाई कोर्ट, लक्ष्मी चौक, शिमला पहाड़ी, क्वीन मैरी कॉलेज, गढ़ी शाहू, धर्मपुरा, नहर, मुगलपुरा, लिंक रोड, जीटी रोड, यूईटी, जीटी रोड, फैसल चौक समेत मुख्तलिफ इलाकों से गुजर कर रीगल चौक पर इख्तिताम पजीर हुआ। सीसीपी बिलाल सदीक कुमियाना कहते हैं कि आम इंतखाबात के लिए शहर भर में सिक्योरिटी के सख्त इकदाम किए गए हैं। तमाम डिवीजन के हॉटस्पॉट एरियाज में भी फ्लैग मार्च का सिलसिला जारी है। किसी को कानून हाथ में लेने की हरगिज इजाजत नहीं देंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर सार्फिन को बेहतर सहूलियात मुहैया करने में मसरूफ अमल हैं। आलमी मयार के जदीद सहूलतों से आरास्ता कस्टमर सर्विसेज सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया है। तफसीलात जानते हैं सीनियर रिपोर्टर साजिद काजमी से। जी साजिद, बताइएगा। जी कोहिनूर, सीओ लेस्को शाहिद हैदर जहां इंसदादे बिजली चोरी मुहिम और रिकवरी मुहिम में नंबर 1 है, वहां वो अपने सार्फिन, लेस्को मुलाजमीन और कंपनी के मयार की बेहतरी के लिए हमा वक्त इस्लाहात मुतारिफ करवाते नजर आते हैं, जिसका अमली मजहर आज देखने में आया जब उन्होंने सार्फिन को बेहतरीन सहूलियात मुहैया किए जाने के लिए महदूद वसाइल के बावजूद आलमी सतह के मॉडर्न तर्ज के कस्टमर सर्विसेज का इफ्तिताह कर दिया, जिसमें सार्फिन को फौरी सर्विसेज मुहैया की जाएंगी। सीओ शाहिद हैदर ने इफ्तिताह के मौका पर कोहिनूर से बात करते हुए कहा कि आज सार्फिन के मसाइल एक ही जगह पर हल करने का मेरा देरेना ख्वाब पूरा हो गया। इस ख्वाब की ताबीर में मेरी टीम की बड़ी मेहनत शामिल है, जो सीएसडी राय मोहम्मद असगर, डीजी एडमंड जमीर हुसैन कुलाची, डायरेक्टर एचआर नुमान गफूर, चीफ O&M सरवर मुगल, चीफ प्लानिंग इमरान महमूद, चीफ सेफ्टी फवाद खालिद, चीफ इंजीनियर मोहम्मद एजाज, एससी सिविल वर्क्स फुरकान अली, एक्सियन सिविल वर्क्स चौधरी मुबीन, डिप्टी डायरेक्टर सलमान हैदर, डिप्टी डायरेक्टर एचआर मोहम्मद शफीक और एएम कस्टमर सर्विसेज फौजिया उमेर शामिल थी। तर्जमान राय मसूद खरल ने कोहिनूर को बताया कि सीओ लेस्को शाहिद हैदर के वीएन के मुताबिक कस्टमर सर्विसेज सेंटर का स्टाफ सार्फिन से खुश अखलाकी और नर्म लहजे में बात करने का पाबंद होगा और दस्तयाब वसाइल में हर मुमकिन मदद या सहूलत फ्राहम करेगा, जिसमें बिजली बिलों की आसान इकसात, तारीख अदायगी में तोसी और मार्केटिंग की सहूलियात शामिल होंगी। उन्होंने कहा कि सार्फिन को बिला ताअत्तुल सप्लाई और बेहतर से बेहतरीन सहूलियात फराहम करने में लेस्को तभी कामयाब हो सकती है जब सार्फिन बिल की अदायगी बर वक्त करें और बिजली चोरी हरगिज ना करें। जी बहुत शुक्रिया साजिद काजमी।
नून लीग के उम्मीदवार PP 150 ख्वाजा इमरान नजीर के एजाज में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। ताजरों, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। मियां मिराज इलाही शेर और बागबानपुरा बाजार के ताजरों ने ख्वाजा इमरान नजीर का इफ्तिताह भी किया है। आगे बढ़े आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने ड्राइविंग लाइसेंस फीसों में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त पर फिरकैन से जवाब तलब कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने सीनियर कानूनदान गुलाम नवाज हिरल की ड्राइविंग लाइसेंस की फीसों में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की है। दरख्वास्त में निगरान पंजाब हुकूमत, IG पंजाब समेत दीगर को फरीक बनाया गया है, जबकि दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ड्राइविंग लाइसेंस की फीसों में इजाफा कानून के मुनाफी है। निगरान हुकूमत के पास इजाफी टैक्सेस लगाकर फीसों में इजाफे का इख्तियार नहीं। निगरान हुकूमत रोजमर्रा के मामलात चलाने के लिए फीसें बढ़ाना इसके इख्तियार में नहीं। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की है कि लाहौर हाई कोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस की फीसों में इजाफे का नोटिफिकेशन कालादम करार दे। पाकपतन में आम इंतखाबात की जिला इंतजामिया ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। पुलिस के हमरा पाक फौज और रेंजर्स के जवान 910 पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। मजीद जानते हैं कोहिनूर न्यूज के रिपोर्टर तारिक चिश्ती की इस रिपोर्ट में। पाकपतन में ज़िले इंतजामिया की जानब से आम इंतखाबात के तमाम तर इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई, जबकि पुलिस ने भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात कर लिए। पुलिस की जानब से आम इंतखाबात में अमन व अमान की फिजा कायम रखने के लिए फ्लैग मार्च भी किया गया। ज़िले इंतजामिया के साथ मिलके हमने डिटेल्ड फ्लैग मार्च भी फोर्सेस के साथ मिलके कंडक्ट किया है। आर्मी के जो ट्रुप्स हमारे पास आने थे वो आ चुके हैं QRF रोल में, और इसके अलावा रेंजर्स की नफरी भी हमारे साथ शामिल हो चुकी है। और इंशाल्लाह हमारे पास जो 910 पोलिंग स्टेशन हैं उन तमाम पोलिंग स्टेशन पर हम पीसफुल कंडक्ट इलेक्शन का इंश्योर करेंगे। टोटल हमारे 2200 पुलिस एहलकार इन 910 पोलिंग स्टेशन पर अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देंगे। ज़िले इंतजामिया की जानब से जिला भर के पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के साथ पोलिंग मटेरियल पहुंचाने का अमल भी जारी है। यहाँ पे भी आरिफवाला में भी पूरा डिस्ट्रिक्ट इस वक्त माशाल्लाह पूरा अमन है। तमाम फोर्सेस ने हमें ज्वाइन कर लिया है। सिक्योरिटी के इंतजामात बेहतरीन अंदाज में किए गए हैं और किसी किस्म का यहाँ पे हमें कोई सो फार मसला पेश नहीं आया। हमारा जो पैकिंग मटीरियल है इलेक्शन के हवाले से सेंसिटिव नॉन सेंसिटिव, हमारे लोग आज यहाँ पे सारे जमा हैं जो अपना अपना PP और कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज लेकर जाएंगे अपना पोलिंग मटीरियल। ज़िले इंतजामिया जहाँ अमन व अमान की फिजा बरकरार रखते हुए इंतखाबात के अमल के लिए पुरअज़म है, वही अवाम नास से भी कानून की पासदारी की तलकीन की है। कैमरा टीम के साथ तारिक सज्जाद चिश्ती, कोहिनूर न्यूज, पाकपतन। जर्मनी और बेल्जियम की वाटर कंपनी डिलुइंग ब्लू के वफद ने आब पाक अथॉरिटी हेड ऑफिस का दौरा किया। पीने के पानी की जदीद फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजीज पर तबादला ख्याल किया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आब पाक सैयद जाहिद अजीज के साथ 2 तरफा मुलाकात में पंजाब में पीने के पानी की सूरत हाल पर वफद को ब्रीफिंग दी गई। तफसीलात जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। जर्मनी और बेल्जियम की वाटर कंपनी डेल्विंग ब्लू के वफद ने आप पाक अथॉरिटी हेड ऑफिस का दौरा किया। पीने के पानी की जदीद फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजीज पर तबादला ख्याल किया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आप पाक अथॉरिटी सैयद जाहिद अजीज के साथ 2 तरफा मुलाकात में पंजाब में पीने के पानी की सूरत हाल पर वफद को ब्रीफिंग दी गई। सैयद जाहिद अजीज ने कहा शुमाली पंजाब में वाक़या 37 छोटे डैम्स पर पीने के पानी के मंसूबे लगाए जाने का प्लान है। वस्ती और जनूबी पंजाब में खारे पानी वाले इलाकों में नहर का पानी साफ किया जाएगा। वफद को लाहौर में पानी की सूरत हाल पर डायरेक्टर PND वासा ज़ीशान बिलाल ने ब्रीफिंग दी। वफद में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर डेल्विंग ब्लू राफे गुलरेज और डॉक्टर एहसन मोहम्मद ने शिरकत की। मज़कूरा कंपनी वाटर फिल्ट्रेशन के लिए जदीद श्रमिक मेंबर बनाने पर महारत रखती है। सैयद जाहिद अजीज ने कहा पंजाब में बैनुल अक़वामी मियार के पानी के मंसूबे मुतारिफ करवाए जाएंगे। कैमरा टीम के हमरा कामरान अली, कोहिनूर न्यूज, लाहौर। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC के वनडे रैंकिंग में पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम की पहली पोजीशन बरकरार है। ICC ने टेस्ट, वनडे और T20 प्लेयर्स की रैंकिंग जारी कर दी। वनडे प्लेयर्स रैंकिंग में पाकिस्तान के साबिक कप्तान बाबर आजम की पहली पोजीशन बरकरार है। वनडे रैंकिंग में भारत के शुभमन गिल का 2रा और विराट कोहली का 3रा नंबर है, जबकि न्यूजीलैंड के डैरन मिचेल एक दर्जे तरक्की के बाद 5वें नंबर पर आ गए। वनडे बॉलर्स में जनूबी अफ्रीका के कीशफ महाराज की पहली पोजीशन बरकरार है। दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलरेडी और ऑस्ट्रेलिया के एडम जंपा एक दर्जे तरक्की के बाद 3रे नंबर पर आ गए।
वनडे ऑलराउंडर में बांग्लादेश के शकीब उल हसन का पहला नंबर बरकरार है। एंटरटेनमेंट की दुनिया से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं, बॉलीवुड की मकबूल जोड़ी ईशा देओल और भरत तख्तानी ने शादी के 12 साल बाद एक दूसरे से राहें जुदा कर ली हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक ईशा देओल और भरत तख्तानी ने मुश्तरका बयान जारी करते हुए अलहदगी की तस्दीक की है। साबका जोड़ी का कहना था कि हमारे दरमियान अलहदगी बाहमी रजामंदी से हुई। जिंदगी की इस तब्दीली में बच्चे हम दोनों की तरजीह रहेंगे, जो कि हम दोनों के लिए बेहद अहमियत के हामिल हैं। हम अपनी प्राइवेसी का एहतराम करते हैं। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए के न्यूज, क्योंकि हम हैं आजाद भी और जिम्मेदार भी।